everyone. So today we have a new problem which name is find bottom left tree value lead code 513 problem. So let's read the problem statement. So given the root of the binary tree, return the leftmost value of the last row of the tree. This is the last row of the tree. So let's see the example. So we have given this tree 213. So this is the level 1. As you can see here, we have to return the leftmost value of the last row. So this is the level 1 means first row. This is the level 2 means second row. This level. So this is the second row and there is no row further. So the leftmost value of this row is 1. So 1 will be our answer. So let's see the example 2. This is the level 1. This is a level 2, this is a level 3, and this is the level 4. And the leftmost value of level 4 is 7. So 7 will be our answer क्योंकि आगे कोई लेवल है नहीं. So हमें तो रिटर्न क्या करना है leftmost value of last row means ending वाली रो जो होनी चाहिए उसकी leftmost value. So 7 will be our answer. So let's see the proof part for this. Yeah. So if we have this example 213, this is the level 1 and this is the level 2 and this is the last level, so we will return 1 because this is the leftmost element. So 1 will be our answer. So how we will do this? As you can see here, we are using the level order traversal because this is the level 1, this is the level 2. We are going level by level. So we are using the level order traversal technique. So in level order traversal technique, what we do is we create a queue. So here also we will create a queue, and what we'll do, we'll push the root node in queue. Firstly, we'll push the root node, which is 2 in queue. I pushed this. Now what I will do, I will pop this while queue is not empty. While queue dot size is not empty, तब तक के लिए हम पॉप करते जाएंगे. ठीक है, तब तक के लिए मतलब ये प्रोसेस करेंगे. ये एक while लूप के अंदर आएगी चीजें जब तक queue dot size empty नहीं होता. ठीक है, तब तक के लिए. So now as you can see here, initially 2 is there in the queue. Okay, so now I'll pop that element and I will push its neighbor elements means left element and right element. So the leftmost element of queue is 1 and right element of queue is, sorry, root is 3. So 1 comma 3 I'll push. Now what I will do is I'll check कि मैंने 2 को पुश हटा दिया, पॉप कर दिया. नाउ 1 and 3 is in my queue. Initially my answer equals to 0. What we will keep storing the first element of each level. What this mean is we are storing the first element. First element is the left element. Root का left element is my first element. So 1 is my first element and third is my 3 is my second element. So we will keep storing the first element of each level. Now what I will do here, I'll pop this first with this one, and I have popped the this two, and I pushed the left element and the right element. Now what I will do, pop this element one, and I'll push the its left element and right element. Here as you can see here, लेफ्ट में भी कुछ नहीं है वन के और राइट में भी कुछ नहीं है, तो इसको कुछ नहीं डालेंगे. ठीक है, और इनिशियली मेरा आंसर कितना हो जाएगा. नाउ इनिशियली तो आंसर 0 था, अब अपडेट होकर आंसर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि मैंने बोला था वी विल कीप स्टोरिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच लेवल. फर्स्ट लेवल 1 के में एलिमेंट क्या था 2, उसको स्टोर नहीं करना है क्योंकि भाई 2 को स्टोर करोगे ना तो वो तो रूट नोड है, उसको स्टोर नहीं करना है. इनिशियली माई आंसर इज 0. नाउ जब हम लेवल 2 पर जाएंगे फिर लेवल चेंज करते जाएंगे तो उसका फर्स्ट एलिमेंट हम स्टोर करते जाएंगे. हेयर एज यू कैन सी है 1 and 3 इज माई लेवल 2, 1 and 3 इज माई लेवल 2. 2 तो हमने हटा ही दिया था इनिशियली. ठीक है, 1 and 3 माई लेवल 2 एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लेवल 2 इज 1, सो स्टोर कर लेंगे 1 को. ठीक है, नाउ 3 को पॉप करेंगे, 3 के भी लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है, तो अब मेरा क्यू क्या हो गया एम्प्टी. एम्प्टी हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे आंसर. आंसर इक्वल टू 1. So let's see the example 2. As you can see here, this is the level 1, level 2, level 3 and level 4. level 3 में 4 5 6 है, याद रखना. थोड़ा फिर डायग्राम ऐसा बन गया पर कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इनिशियली माई आंसर विल बी 0 एंड इनिशियली माई क्यू में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 है ओनली. ठीक है, इनिशियली 1, जो 1 है रूट नोड इनिशियली मेरे क्यू में है. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, I'll pop that element and I'll push the left element and the right element of the root. So left element is 2, right element is 3, 2 and 3.
अब मैंने क्या किया, 2 और 3, दिस इज द लेवल 2, ठीक है, ये लेवल 2 हो गया। नाउ माई आंसर विल बी 2, बिकॉज जब जब मैं लेवल चेंज करूंगा मैं मेरा आंसर अपडेट हो जाएगा। और अपडेट कैसे होगा, जो कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू है वो मेरा आंसर होगा। सो लेवल 2 हो गया, आंसर मेरा 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये तो वन पॉप ही कर दिया था, तो 2 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, 2 को पॉप करेंगे, 2 को पॉप करेंगे, 2 को पॉप करने के बाद लेफ्ट और राइट एलिमेंट डालेंगे। लेफ्ट में 4 है, राइट में कुछ है ही नहीं, तो 2 को पॉप किया, लेफ्ट में 4 था तो 4 डाल दिया, आगे का मत देखो, 4 डाल दिया, ठीक है। नाउ 3 पर देखेंगे, 3 के लेफ्ट में क्या है, 5 है, और राइट में क्या है, 6 है, तो 5 और 6 को भी डाल दिया, ठीक है, आगे मत देखो कुछ भी, ठीक है। नाउ हमने लेवल, ये वाला भी थर्ड वाला भी हमने लेवल थर्ड पर आ गए, मतलब 4 5 6 है ना, लेवल थर्ड पर आ गए। नाउ माई आंसर विल अपडेट, आंसर क्या होगा, इसको मत देखो, 7 वाले को मत देखो, ठीक है। 1 2 एंड 3 को मैं पॉप कर चुका हूँ, क्योंकि लेवल 2 पर मैं पूरा, लेवल 2 पर पूरा ट्रेवर्स कर चुका हूँ ना। आई ट्रेवर्स द लेवल 3, लेवल 3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4, तो 4 विल बी एन आंसर, ठीक है। अब लेवल 3 के देखेंगे, 4 के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, हटा दो। 5 को देखेंगे, 5 के लेफ्ट में 7 है, 7 डाल दिया, राइट में कुछ नहीं डालेंगे। 6 के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं डालेंगे। नाउ अगेन वी विल ट्रेवर्स, वी विल पॉप द एलिमेंट, एंड आफ्टर पॉपिंग ऑल द एलिमेंट्स व्हाट आई विल गेट इज लेवल 4 एलिमेंट, मीन्स ये वाला। 1 2 3 तीनों ट्रेवर्स हो गए, 7 पे बचा, मैं 7 आ गया मेरे यहाँ पे। नाउ आई हैव टू अपडेट माई आंसर, तो आंसर इक्वल टू 7, एंड इसको पॉप करेंगे, 7 के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट के में कुछ नहीं है। आफ्टर पॉपिंग माई क्यू विल बी एम्प्टी, सो if my queue will be empty, I'll return my answer. So answer equals to 7. So let's do the code for this. Yeah, yes. So what I will do initially, I have to create the queue. So let's create it. T node star queue. Now I have to apply. I have to push the root node in queue. So queue dot push of root. ठीक है. And I have to initialize my answer also. So initially my answer is 0. Now I have to apply a loop while not of q dot empty. जब तक मेरा q empty नहीं हो जाता तब तक ये loop work करेगा, ठीक है. Now initially I'll find the my size. So int size equals to q dot size, and I will apply a loop because I have to go in level wise. So I have a element. See, I have a element, root element. I have pushed this. Now I will pop the element from the queue, and I will push the its left and right element. Now I will traverse left and right element. So I have to apply a loop for int I equals to 0, I less than q dot size, then I plus plus. See why I'm applying this. I am going level by level. First this level, then 2 3, then 4 5 6, then आगे भी कुछ होता तो उसके लिए, तो इसलिए हम लूप चला रहे हैं इसमें, ठीक है. Now in this loop what I will do is I will check auto front. What is my front element? Because that will be my answer. So q dot front. Q dot front is my front element. Now I'll pop that element because initially रूट एलिमेंट इज वही फ्रंट एलिमेंट, सो रूट एलिमेंट को पॉप करेंगे और जिसके लेफ्ट में होगा राइट में होगा उसको में क्यू में पॉप कर देंगे. तो आई विल चेक इफ इफ आई इक्वल टू 0, इफ माई आई 0 है, इनिशियली है, सो आंसर को अपडेट करूंगा, आंसर इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, मीन्स फ्रंट की वैल्यू, फ्रंट का वैल्यू मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है. बिकॉज initially my answer was 0, but if I equals to 0, it means first element is my after popping my first element is my answer. So after popping, like as you can see here, after I popped the 2 here, and the first element 1 initial 1 is my answer, after updation 1 will be my answer. So but answer equals to front की value, ठीक है. Now I'll check if front का left exist करता है या नहीं. If left not equal to null, if my front का left not equal to that, or also if my front का right not equal to null. In these two condition
आई हैव टू चेक, अगर मेरा फ्रंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो उसको पुश कर दो, तो क्यू डॉट पुश ऑफ फ्रंट का लेफ्ट, एंड सेम चीज इसमें भी लिखूंगा मैं, तो इसको जस्ट कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं। पुश ऑफ फ्रंट का राइट, अगर मेरा राइट एग्जिस्ट करता है तो राइट को भी पुश कर दो। और फाइनली आफ्टर दिस व्हाइल लूप व्हाट आई विल डू, आई विल रिटर्न माय आंसर। सो लेट्स सी दिस, कि एक साइज निकाल लिया मैंने, एक ट्रेवर्स कर लिया, ऑटो फ्रंट निकाल लिया, फ्रंट वाले एलिमेंट को पॉप कर दिया, आई विल चेक कि आई इक्वल टू जीरो है, तो आंसर इक्वल टू फ्रंट का वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आई इक्वल टू जीरो मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इज my answer, and then value will change because आफ्टर अपडेशन जीरो से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो एक वो ही ठीक है कि मैंने यहाँ पे पॉप किया एलिमेंट, तो आई इक्वल जीरो है ना, आई इक्वल जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन क्यू डॉट डॉट साइज, ये मतलब है इसका, ठीक है। नो फॉर नाउ लेट्स रन दिस एंड सी इफ दिस विल वर्क और नॉट। या इट इज गिविंग मी सम रॉन्ग आंसर, लेट्स सी व्हाई इट इज गिविंग मी रॉन्ग आंसर। So I have created a queue, node star queue, queue dot push of root. Okay. Now answer equals to zero. While not of queue dot empty, size equals to zero. I less than size सही चल रहा है, ठीक है। ओ, हाँ चलो चलो फिर फर्क ही नहीं पड़ता, ऊपर भी अपडेट कर दिया था वैसे मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो फ्रंट इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट पॉप, इफ आई इक्वल्स टू जीरो, आंसर इक्वल्स टू फ्रंट का वैल्यू, ठीक है। इफ फ्रंट का लेफ्ट अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल है, तो क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट पुश ऑफ फ्रंट के लेफ्ट, और ये भी मेरे पास है नॉट इक्वल टू नल, तो क्यू डॉट पुश ऑफ फ्रंट का राइट, ठीक है। और फाइनली आई विल रिटर्न माय आंसर, लेट्स रन दिस अगेन। ओके, ये दिक्कत थी ना, ये दिक्कत तो नहीं थी यार, चलना चाहिए था। Yeah, it is working perfect as you can see here. So now let's submit this. Yeah, it is working perfect. So as you can see here, what I have done is I have simply checked. देखो एक बार दिमाग में अप्रोच क्लियर रखो। We are going level by level. So in level order traversal, what we do is we use a queue. What we are using here is फर्स्ट एलिमेंट रूट वाले एलिमेंट को क्यू के अंदर डालेंगे, ठीक, फिर उसको पॉप करेंगे क्यू से, ठीक है। और पॉप कब तक करेंगे, जब तक मेरा एम्प्टी ना हो जाए, ये वर्किंग प्रोसेस जब तक करेंगे जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। रूट वाला एलिमेंट मैंने पॉप किया, उसके लेफ्ट और राइट वाले एलिमेंट उसमें डाल दिए, ठीक है। नाउ आई विल चेक, पहले चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट है या नहीं है। सो ये कंडीशन वही चेक कर रही है कि लेफ्ट है तो लेफ्ट वाला डाल दो, राइट है तो राइट वाला डाल दो। और ये लूप क्यों चलाया, आफ्टर पॉपिंग द एलिमेंट, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल रहा 2 1 3 था, तो 2 मैंने पॉप कर दिया, 2 मैंने पॉप किया, तो मेरा लूप कहाँ से चलेगा, आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन क्यू डॉट साइज, मतलब जीरो मतलब यहाँ से, ये तो पॉप कर ही दिया, तो जीरो इंडेक्स ये हो गया, ये जीरो इंडेक्स, ये वन इंडेक्स ये हो गया, तो आगे तक चलता जाएगा। और इफ आई इक्वल टू जीरो है तो आंसर इक्वल टू फ्रंट की वैल्यू जीरो, ये था जीरो इंडेक्स, तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई, वन। सो आंसर इनिशियली माय आंसर विल बी वन। सो फिर आगे चलता जाएगा, अपडेट हो जाएगा। सो दिस वाज द सॉल्यूशन, ओके। So if you find this helpful, then please like, share, and subscribe. And if you know the time and this is complexity for this solution, you can comment. Okay. So this is your task to write the time and space complexity. So तब तक के लिए bye.